Hmm. So in the previous class, I started with this exponential signal, and so four classes of exponential signals: continuous time real exponential signal, then continuous time discrete, then you have a sorry discrete time real signals, then continuous time complex, and then discrete time complex. So four types of these signals uh, uh, are available, and you may require these signals for synthesizing a complex signals that you are going to observe, or that you are going to come across during some of your this thing courses. Okay, so now what we start with the continuous time real signal. So as I told you, so a c is the scale and a is the exponent. So for real signals, a and c are going to be the real, and for complex, a and c are going to be the complex one. Am I audible? हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. And screen is visible. Screen is visible ना? अरे भाई बताओ, आगे बढ़े. Yes, sir. हाँ ठीक है. अब देखो प्रॉपर्टीज, इसकी भी हमें क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज देखनी है. प्रॉपर्टीज में क्या है? एक तो हमने देखा था साइन के केस में, एक हमने देखा था टाइम शिफ्ट. अगर हम टाइम शिफ्ट, सो इफ यू आर गोइंग टू डू सम टाइम शिफ्ट in the signal, so what will happen to the signal? So the time shift, time
time shift. So we have to check how the time shift is going to impact the signal. So suppose some signal is x e to the power a, and now I have made some shift in the time. So now time is t plus t naught. Hmm. So what will happen? The signal will be c naught. Suppose this is a c naught, c naught. Hmm. Then it is a raised to the power a t naught, sorry, e raised to the power a t naught, and then e raised to the power a t. Fine. So what happens now? This is the scale. This is the scale. This is the scale. So what happens now? So if you are going to um, make a time shift in the signal, so that will result into, because a e to the power a t naught uh, is going to give you some fixed value. uh, so it will be multiplied with c naught, and the overall this term is going to give you the new scale. Means the original signal is going to be scaled. So if the value is greater than 1, means it will be scaled up. It will be, if it is less than 1, so means it will be a scaled down version of the same signal. So time shift represents a scale change here. Hmm. So time shift represents a scale change, a scale change. And so if you are going to make a change in the scale, so that will result into time shift. Okay. So this is a very usual kind of observation. So nothing exciting about this. Nothing exciting about this. Okay. Now let us see what happens when I am going to deal with a discrete time real signal. So discrete time real exponential. So second kind of signal that I will be dealing is a discrete time real exponential. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं? अब जैसे मान लीजिए हमारा सिग्नल है एक्स एन discrete time. So this is represented as c e to the power. यहाँ पे अल्फा की जगह, वहाँ पे ए की जगह मान लीजिए हमने कुछ और ले लिया, बीटा ले लिया, नो इश्यूज. एंड दिस n has to be the integer. That's for sure. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा सा टू रिप्रेजेंट इट इन मोर convenient manner, so that while doing the analysis I am more comfortable. What they have done, they have represented this as a alpha raised to the power n. इसका मतलब ये हुआ कि this term they have represented as alpha. ठीक है ना? So c then alpha raised to the power n. So this is how they are representing, where c and alpha are real number, are real. क्यों ऐसा कर रहे हैं? Why I am representing like this? Certainly while doing analysis we will be having some advantage, or the expressions will be much simpler. That's why it is done. ठीक है. Okay. अब देखिए, now what we are going to observe, now you take different values of alpha. आप अलग अलग वैल्यूज लो अल्फा की, एंड देन विल ट्राई टू प्लॉट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब अल्फा की वैल्यू जो है, मान लीजिए क्या क्या हो सकती है. एक तो हम देखें कि ये 0 है, और ये क्या है,
ये 1 है, so this is 1, this is -1, ठीक है। Now the alpha can have a value in different sections. कौन कौन से sections? एक तो अल्फा की वैल्यू क्या है कि मान लीजिए ये सेक्शन है, so this is representing that the alpha is greater than 1, ठीक है। Then alpha between 0 and 1, so this is the second section, ठीक है। Then third section is representing alpha is between 0 and -1, ठीक है, so third, and this fourth part, ठीक है। So alpha is less than -1, ठीक है। So in these four cases of the alpha, we can have a different kind of signals or the sequence when you try to plot it. अब जैसे पहला अगर हम कंडीशन ये देखें कि the xn, so just think of the first condition, the sequence, डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल नहीं बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस इज गिवन एज अ सी अल्फा एन, n is going to be the integer, that's for sure, and if you are going to take the value of alpha which is greater than 1, so इस केस में क्या होगा, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, if you are going to plot it, अल्फा मान लीजिए अल्फा आप 2 ले लेते हो, 2 to the power 1, अगर मान लीजिए आप जो है just for the sake of simplicity c equal to 1, you just take c as a 1 and alpha you take as a 2 and see what happens. So if you take n equal to 0, so you'll have a value 1, ठीक है। n equal to 0 पे वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। n equal to 1 पे वैल्यू मिलेगा 2 to the power 1, so it is a 2, ठीक है। then n equal to 2 पे क्या मिलेगा, 2 to the power 2, so this is a 4, and the value will keep on increasing. ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, छोटा लेते हैं, ओके। ओके, सो ये वैल्यू लिया, फिर दिस वैल्यू, it will keep on increasing and so on, ठीक है। so this kind of signal or the sequence you will be getting for the case alpha greater than 1, ठीक है। exponentially increasing sequence, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या है, अब दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन में क्या है, अल्फा की वैल्यू जो है आपका 0 और 1 के बीच में, ठीक है। सो द सेकेंड कंडीशन इज, सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। नाउ द सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सो अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन, दूसरा सेक्शन देखिए, अगर वैल्यू अल्फा की जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो क्या होगा, आप देखिए कि यू जस्ट इमेजिन xn विल बी c, और आप जैसे यू जस्ट इमेजिन दैट अल्फा इज हैविंग वैल्यू हाफ, ठीक है ना, और आप उसके बाद देखो क्या होता है। so if you plot it, so if you take n equal to 0, तो यहाँ पे क्या होगा, n equal to 0 पे और c की वैल्यू 1 ले लिए,
तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। देन you keep on taking the value of higher value of n, and what will happen, the outcome will be keep on decreasing, ठीक है। So this kind of sequence you will be getting when you are having the value of alpha between 0 and 1, ठीक है। Okay, now ये कॉपी पे लिखते रहिए। Now what I will do, I will take another case. अब मैं तीसरा केस ले रहा हूं। सो माय थर्ड केस इज अ third case. So alpha is having value less than 0 and greater than -1. So this is the section I am talking about, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, again I have a equation, or I have the sequence xn equal to c alpha n, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, now I try to plot this sequence. Suppose this is a 0। अब मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू मैंने -½ ले लिया, ठीक है। सो सपोज आई टेक अल्फा एज -½ सो xn इक्वल टू एंड c इक्वल टू 1, सो -½ ठीक है, एंड n, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, so at n equal to 0, so the value is going to be 1, that's for sure. What about what will be the value at n equal to 1? It is going to be how much? -½ What will be the value at n equal to 2? N equal to 2, so -1/2 and 2. So it is going to be -1/2 multiplied by -1/2. So it is going to be 1/4. Okay. So the amplitude will be decreasing. That's for sure. Amplitude is going to decrease. Yes. But it is going to be positive. So what will be the value at n equal to 3? n equal to 3 पे क्या वैल्यू होगा? हाँ भाई, कोई बताएगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो गया? सोते नहीं रहना है। नेगेटिव सर। निगेटिव होगा नेगेटिव ना? तो हाँ, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, सोना नहीं है, 5 6, ठीक है। 3 पे क्या होगा? निगेटिव, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होता जाएगा। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस, so it will be negative, and 1/8 will be the value, so again it will be decreasing. तो ये देखो, ये जो है, ये मामला ऐसे चलता जाएगा। तो एक इस तरह का आपको मिलेगा, किस तरह का सीक्वेंस, इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। कुछ निगेटिव में, कुछ पॉजिटिव में, इस तरह से मामला चलता जाएगा, जाइए, ठीक है। इस तरह का मामला जो है, इस तरह का आपको मिलेगा, आपको ग्राफ, ठीक है। या फिर इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह का होगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड केस। सो व्हाट हैपेंस, द साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड और द साइन ऑफ द सीक्वेंस डिपेंड्स अपॉन whether the n is even or odd, ठीक है। सो इफ क्या है, n is even, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, यू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, और साइन डिसअपियर्स और पॉजिटिव वैल्यू। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, इफ n इज ऑड, ठीक है, सो यू गेट अ निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। ओके, so this is the third case. Now I will just try to explain the fourth case. अरे चलो कोई नहीं। फोर्थ केस क्या था, फोर्थ केस था जो अल्फा हैज टू बी लेस देन, इफ यू जस्ट सी दैट section, 4 sections that I have just demarcated, so s has to be less than -1, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, so s is less than -1, अब इस केस में क्या होगा, ये आप देखिए कि आपका जो हो गया ये xn इक्वल टू c अल्फा एंड रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। अब अल्फा मान लीजिए कि आप ले लीजिए, अल्फा आप मान लीजिए -2 है, ठीक है, तो क्या हो गया, और c मान लीजिए 1, सो -2, ठीक है, n। अब इसका आप देखिए कैसे होगा, क्या मामला है इसका। अब n इक्वल टू 0 पे तो क्या हो गया, वो तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 अगर लेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, और 2 ले लिए तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 3 ले लिए तो -8 हो गया। तो क्या पता चल गया आपको कि ये देखिए, ये जो है इस तरह से मामला चलता जाएगा। ये क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मामला इसका चलेगा। ये एक्सपोनेंशियल है, इस तरह से मामला इसका आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। सो फॉर इवन, सो इफ n is even, ठीक है, सो पॉजिटिव वैल्यू, if n is odd you have a negative value, और ये क्या है, दिस इज इंक्रीजिंग, द एक्सपोनेंशियल इज इंक्रीजिंग, जबकि तीसरे केस में क्या था, एक्सपोनेंशियल इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान देने की बात है। सो 4 कंडीशंस ऑफ अल्फा विल गिव यू 4 टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। सो यू कैन हैव, अब ये चीज क्या है कि दिस में हेल्प यू, if you have some fair idea about what is going, how the signal is going to appear or how the sequence is going to appear, so certainly that will help you out, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये हो गई बात। अब जो है दूसरी बात शुरू करते हैं। हमने क्या माना था, सो अल्फा, सो द अल्फा आई हैव टेकन एज अ e raised to the power बीटा, ठीक है ना। अच्छा, नाउ इफ अल्फा इज नेगेटिव, इफ अल्फा इज नेगेटिव, क्योंकि हमने देखा है कि अल्फा नेगेटिव पे भी हम एनालिसिस किया हमने, अल्फा हैज टू बी, 2 हमने कंडीशन देखे, अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड -1 एंड देन अल्फा इज लेस देन -1, सो 2 कंडीशन।
So if alpha is negative, if alpha is negative, क्योंकि हमने ये रिलेशन यहाँ पे ले लिया, अब अल्फा निगेटिव है तो आप देखिए क्या हो रहा है कि अल्फा निगेटिव है तो इसका मतलब e रेज टू द पावर बीटा भी क्या होगा, इट हैज टू बी निगेटिव। इसका मतलब अल्फा निगेटिव है तो e रेज टू द पावर बीटा ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई, लॉग अल्फा इक्वल टू लॉग बीटा, लॉग ई बीटा, नेचुरल लॉग। सो हमको क्या मिल गया, लॉग ई अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये क्या हो गया हमको, द लॉग बेस ई, सो दिस विल हैव अ वैल्यू 1। ठीक है, इसका मतलब बीटा क्या हो गया, बीटा जो हो गया ये क्या हो गया, लॉग अल्फा। अब क्या है, और अल्फा अगर हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, क्योंकि अगर अल्फा हम निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम अल्फा निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, सो लॉग ऑफ, ठीक है, एनी निगेटिव नंबर, ठीक है, लॉग ऑफ, क्योंकि अल्फा हम निगेटिव, अल्फा किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा इज निगेटिव, ठीक है, तब ये कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। सो अल्फा अगर निगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, और उसका अगर हम लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, हम भी भूल गए थे, इसलिए हमें लगा लॉग ऑफ, क्योंकि जनरली हम जब लॉग लॉग जब पढ़ते हैं तो निगेटिव नंबर को हम डील नहीं करते हैं, कि हम बोलते हैं कि भाई निगेटिव का लॉग नहीं निकलेगा, लेकिन अगर जबरदस्ती आप निकालोगे तो आगे कहीं पढ़ा होगा, या ठीक है आपकी इच्छा हो पढ़िए, हम अब नहीं पढ़ सकते हैं। लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब सो हैविंग डन दिस, अब जरा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस टाइम रियल एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या है, सिग्नल एक्स टी, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सी ई टू द पावर ए टी, और यहाँ पे क्या होगा, सो इफ इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इफ एक्स टी इज कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हो गया कि सी एंड ए आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हैं ये, तो सी में बी रिप्रेजेंटेड एज ए सी, सी का क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक इसका फेज होगा। सो यू मस्ट हैव सीन द पोलर रिप्रेजेंटेशन। हाँ,
सो देयर इज अ फेज एंड देयर इज अ मैग्नीट्यूड। उसी तरह से ए को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। रेक्टेंगुलर में क्या आर प्लस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो then my complex signal exponential signal can be represented as a c की जगह आप c bar, c means a mod value means a mod of c e to the power j theta, then e to the power a की जगह आप डालिए r plus j ओमेगा नॉट, ठीक है, t, so it will give you so it is going to give you or e to the power rt, then e to the power j omega naught t plus थीटा, ठीक है। ये आपका जो है xt हो गया। अब xt में देखिए दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक तो c है, c इज सम कांस्टेंट, ठीक है। e टू द पावर rt, r इज ए रियल टर्म, सो एक तो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया यहाँ पे, एंड देन देयर इज ए e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, ठीक है। अब इसको आप जो है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये पता है, यू नो दैट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड Euler's formula, using Euler's formula this can be represented in terms of sin and cos, ठीक है। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस थीटा will be written in terms of sin and cos as a cos omega naught t plus theta plus j sin omega naught t plus theta, ठीक है। So in xt what is happening, the both terms will be multiplied by which factor, this factor, कौन से कलर से करोगे, this factor, ठीक है। सो xt equals to e to the power rt multiplied by cos omega naught t plus theta plus j, again the same term, e to the power rt and sin omega naught t plus theta। दो टर्म हो गया इसमें, एक रियल टर्म हो गया एंड दिस इज अ इमेजिनरी टर्म, ठीक है। और दोनों टर्म में क्या है, देयर आर टू सिग्नल्स, ठीक है। एक तो साइनोसॉइडल सिग्नल है, एक दूसरा देखिए आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है। एक साइनोसॉइडल और एक एक्सपोनेंशियल। तो अब ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दिस कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, so it will have a one real part and other imaginary part. Real part is combination of two signals, one is sinusoidal signal, other is exponential signal, ठीक है। अब आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल को एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेव फॉर्म कैसे होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल इज वेरिंग, हम ये कह सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग दीज टू सिग्नल्स। So what is happening here, that the magnitude of the sinusoidal signal, both sine and cos we call it sinusoidal signal, is multiplied or is varying
according to some exponential function. ठीक है? So the magnitude is not fixed. Magnitude is not fixed. It is an exponential function of time. ठीक है? So if you plot this signal, again this will depend upon whether this exponential function is growing or decaying. So it is growing or decaying. The idea we will get from the previous analysis that we have seen. So that will depend upon the value of r. So if r is a greater than 0, it will have a, it is going to behave in one way. If it is less than 0, it is going to behave differently. So this is how. So what we have to do, we have to just try to plot, see the possible graphical representation of this continuous time complex signal. But before going for the graphical representation, yes, there are some observations that still we can make from this signal. And I will just write down those observations. नोट्स बना रहे, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स. ठीक है ना? और अगर नोट्स आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप जानिए यू मस्ट सफर फॉर दैट, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट रियलाइज दैट यू वुड हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स. ठीक है? so what observations we get from here? So observations. अब देखो यहाँ पे ये जो सिग्नल है xt, so I am just trying to make some observation about this xt. So there are two sinusoids, one is sine or cos. I will call that as a sinusoid, no matter. So what is happening, that sinusoids of pi by 2 out of phase. साइन और कॉस में क्या है, पाई बाय 2, देर आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2. ठीक है? दूसरा क्या है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है. सो यू हैव अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ठीक है? अब तीसरा क्या है, what you observe that both parts are multiplied by real exponential time varying amplitudes. ठीक है? और आप देखते हो क्या रहा है यहाँ पे, साइनोसॉइड और साइन सिग्नल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल सिग्नल. ठीक है? तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अब क्या है इसमें, अब इसका अगर हम देखना चाहें कि किस तरह का वेव फॉर्म दिखेगा, सो इफ अल्फा और इफ r इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, ये दोनों सिग्नल्स एक ही तरह के प्लॉट होंगे. साइन और कॉस दोनों में क्या होगा, कि 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी सिमिलर. अब ये देखिए क्या है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, मान लीजिए पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल देखिए,
सो सॉरी r इज ग्रेटर देन 0, तो टाइम क्या होगा? सब मान लो r ले लिया आप 0.2, ठीक है, तो टाइम मान लीजिए 5 सेकेंड हो गया है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? ये 1 से ज्यादा होता जाएगा, ये एक्सपोनेंट ये बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द साइनसॉइडल सिग्नल, सो हाउ इज इट इज गोइंग टू अपीयर? इट इज गोइंग टू अपीयर लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से होगा, ये जो है कुछ इस तरह से होगा। So this is going to appear like this. और टाइम अगर आपका क्या होगा? टाइम अगर निगेटिव में ले लें तो क्या होगा? टाइम निगेटिव में ले लें, ठीक है, तो डिके होगा। ये कुछ इस तरह से जाएगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। This is, suppose I am just plotting the imaginary part, x I इमेज t, ठीक है, ओके। अब क्या है? अब इसी का क्या है कि अगर अल्फा जो है आपका या फिर r जो है आपका, अगर क्या होगा? इफ इट इज अ लेस देन 0, ठीक है, तब मामला क्या होगा? तब मामला जो है वो आप ग्राफ बनाओ, खुद ही बनाओ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाओ। ये मान लीजिए हम जो है सेकेंड पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ हमने बनाया फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, सो नाउ यू जस्ट प्रिपेयर द ग्राफ फॉर अल्फा लेस देन 0, ठीक है। सो अल्फा इज नेगेटिव, so you just see how, means what will happen, that the sinusoidal signal amplitude will vary. So how it is going to vary for positive value of t and negative value of t, and you know that the r is a negative value, ठीक है। देखो जरा दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये कुछ इसका उल्टा बनेगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू जस्ट चेक इट आउट हेयर, ठीक है। ये जो है कुछ आपका इस तरह का बनेगा फॉर r लेस देन 0, ठीक है। So this kind of this, so it is, you have to just get some sense only, ठीक है। So this is, these graphs are already made in the book, and you have to refer to the book, ठीक है। क्योंकि आप इसमें मत रहिए कि आपका जो है इसी तरह वाइवा होगा, ठीक है ना। वाइवा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको बुक पढ़ना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि यू मस्ट रेफर टू द बुक, और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे कोर्सेज में भी। सो दीज ग्राफ्स आर मेड इन द बुक, so you just refer to that, ठीक है। So but the sense means it gives you the sense that if alpha is less than 0, so this is how in the positive time frame it is going to decay, ठीक है।
और आप निगेटिव टाइम में जाओगे। निगेटिव टाइम का क्या मतलब होता है प्रैक्टिकली? अगेन दैट इज अ बिग डाउट और दैट इज बिग क्वेश्चन। सो हार्डली विल ट्रीट और विल जस्ट अभी क्या है, सिंपली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए टी इक्वल टू निगेटिव में हम कुछ ले रहे हैं। अदरवाइज विल हैव टू रियली सी वेदर अ प्रैक्टिकल सिस्टम और सिग्नल विल means a negative time will have some meaning or not. Okay, so having done this, let us move to the next type of exponential function. And that is a discrete time complex exponential signal or more appropriately it will be called as a exponential sequence. ठीक है, क्योंकि discrete time signals को हम सिग्नल नहीं बोलते, सीक्वेंस ही बोलते हैं। So xn will be c alpha n। ठीक है, ये अल्फा हमने पहले ही डिफाइन किया था, where c and alpha are complex numbers, complex numbers। तो c हमने जो डिफाइन किया वो कैसा किया, magnitude and the phase c e to the power j theta, then alpha is again magnitude of alpha e to the power j, and this is some angular frequency. Okay, now the signal will appear like and so this is the alpha, and the alpha is having a power n। तो इसके बाद क्या हो गया ये, so this is represented as a alpha raised to the power n and e to the power j plus theta. So this is how I can represent the discrete time complex exponential function, and again I can expand it using the Euler's formula. So I will have a real part and the imaginary part. So the signal will be xn equal to c multiplied by alpha raised to the power n, and one term is a cos omega naught n plus theta plus j, again, and sine plus theta. So this is the term that I will be getting. अब ये क्या है, ये जो टर्म है ये भी क्या है, एक रियल एक्सपोनेंशियल एम्पलीट्यूड है ये, एंड अगेन दिस इज आल्सो अ रियल एक्सपोनेंशियल एम्पलीट्यूड। ओके, अब क्या है, अच्छा, नाउ
So if you take the value of alpha, if you take the value of this alpha equal to 1, ठीक है, अगर आप वैल्यू ऑफ अल्फा 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ you will be getting a sinusoid. दोनों दोनों टर्म जो आपके होंगे, so one will be the means some coefficient c and the sinusoid. और दोनों जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या है आपका, द मैग्नीट्यूड और द ये क्या होगा, क्योंकि अल्फा जो है ना, अल्फा जो है जो आपने डिफाइन किया है वो क्या है, आपने पहले ही डिफाइन किया था, अल्फा जो है वो क्या, e टू द पावर बीटा. सो अल्फा इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो इफ अल्फा यू आर गोइंग टू टेक एज ए 1, इसका मतलब क्या है, जो आपका सीक्वेंस है इसमें दो टर्म्स हैं. सो what is happening, that c is some constant, it is multiplied by some sinusoid plus j and some constant multiplied by sinusoid. So both real and imaginary parts are simple sinusoids, ठीक है ना. So if alpha, so the first condition alpha, if alpha mod alpha is 1, so what you are getting, you are getting real and imaginary sinusoids. साइनोसॉइड्स, ठीक है, सिंपल साइनोसॉइडल सिग्नल. इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा, सपोज ए एम्पलीट्यूड है, सो इट विल बी अ साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है. ये सिंपली उस तरह का इक्वेशन हो गया जो आप देखते आए हो, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह का सिग्नल हो गया, ठीक है. So this is a simple or the conventional sinusoidal signal. We have seen how to plot it. So it will not be decaying or growing signal, ठीक है. ओके, अब अगर अल्फा क्या है कि अल्फा अगर 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, so then you will have a different issues. और अल्फा अगर क्या है, so if the alpha is a so if alpha is greater than 1, so what will happen, the signal will grow, ठीक है. और वो कुछ, ये दोनों आप जब भी प्लॉट करोगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग प्लॉट करोगे, और उसमें क्या होगा, ये जो है आपका, सो इट विल ग्रो अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका डिस्क्रीट वैल्यूज, यू विल हैव अ डिस्क्रीट वैल्यूज लाइक दिस. और इसी तरह से अगर अल्फा जो है ये अगर आपका इसका मॉड अगर 1 से कम है तो आपका क्या होगा, इट विल बी अ डिकेइंग काइंड ऑफ थिंग, it will keep on decaying. And so on, ठीक है. So you can just find the proper graphical representation of these classes of signals in the book, and the basic idea was to, अब आपने देखा होगा कि एक अगर आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल लेते हो, सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, so how many variants of simple exponential signals are there, ठीक है. एक क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, रियल, कॉम्प्लेक्स, और फिर उसमें देखोगे अलग अलग कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं. सो द आइडिया वाज टू जस्ट गिव यू इनसाइट ऑफ अ very basic signal but very powerful signal which we'll be using frequently for representing various complex signals.
and therefore it becomes necessary to understand these basic signals properly. ठीक है, अब आपको ये पता है कि डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड सिग्नल जो है, यू कैन नॉट गारंटी दैट इट इज गोइंग टू बी पीरियोडिक ऑल द टाइम. ठीक है, ये हमने पहले भी आपको करके दिखाया है. जब भी साइनोसॉइडल सिग्नल हमने पढ़ा था, डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड सिग्नल, वहां पे क्या है कि आपको एक मैंने ऑब्जर्वेशन दिखाया था कि दे विल नॉट बी ऑलवेज पीरियोडिक. ठीक है, and how to compute the period of that, so again I told you there. ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा and then I will conclude this class. आपका जैसे हाँ, जैसे आपका सिग्नल है xn equal to c e to the power j, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन व्हेन वी आर डीलिंग विद अ डिस्क्रीट टाइम. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इफ I am just making some shift in time and suppose this is n is the period, so the signal will be represented at e n plus capital N. ठीक है, then so it is nothing but j ठीक है, and the signal, if the signal has to be periodic, so what should be there, this term, this sum should be equal to 1, and that is possible only when this is a multiple of 2 pi. So this is possible only only when this term is a multiple of 2 pi. So this has to be equal to 2 pi m. ठीक है, and in that case the period should be 2 pi by m. ठीक है, and you should be able to, another thing is that n has to be integer. ठीक है, so what you are given the angular frequency, it is known to you. So if you are able to find so you have to find out the minimum value of m for which the n is integer. So if you are able to find out, that's fine, otherwise the periodicity will not be there. ठीक है, so I think you must have recalled it. I have just at least I discussed it at least 2 times. So it is not necessary that discrete time sinusoid signal will be periodic. So that you should keep in mind. So I think I will stop here now, and there are one or two more basic signals. One is an impulse signal and other is a unit step signal, very good signals, and again very basic signals. Okay, and then we will come to the systems. There are some basic properties of a system, so that will come to that. And that will conclude your first chapter. Okay, so let me take the attendance. Anything that you want to ask in the meantime? किसी कुछ पूछना है related to subject other than subject? चलो अच्छी बात है. Just a minute. हाँ सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 24 से कैंपस बंद हो रहा है सर, कॉलेज. इज इट ट्रू और जस्ट र्यूमर? अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन. कहाँ से र्यूमर आया?
सर कुछ ऑडियो थे जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर ऑडियो? लेते हैं आप। अरे किसके ऑडियो फॉरवर्ड हो गए? सर कोई स्टूडेंट था जिसने शायद बात करी थी वार्डन से या फिर यार ये किसी से बहुत बात बदमाश करी। बच्चे हैं, ये मतलब टीचर का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं? दैट्स नॉट फेयर। सर टीचर का ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें, वो बच्चे वो वही बोल रहा है खुद, जो भी सर उसने बात टीचर का नहीं है सर, वार्डन का आई ओके गेस। ओके केयर नाउ टेकर। लेट, हाँ ठीक है। अब आप सुन लो, देखो अभी तो क्या है कि मे बी देयर वाज अ मीटिंग टुडे एंड मे बी क्योंकि जो अभी जो सिचुएशन बन रहा है तो इसमें जो है आई थिंक there has to be some decision aligned with the situation, ठीक है, because we have to respond to the situation, ठीक है। So maybe tomorrow you will be getting some concrete information in terms of some notice, लेकिन as a teacher I will advise you, ठीक है ना, there are uncertainties, that's fine, but if you are going to your home, ठीक है, तो अपने जो है काम की चीजें आप जरूर साथ ले जाइएगा। काम की चीजें मतलब किताब विताब अगर हैं, लैपटॉप वैपटॉप हैं, तो वो जरूर साथ में ले जाइएगा, ठीक है। हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि क्योंकि ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना हो सकती है कि आपको थोड़ा सा कहा जाए कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, जो रुक रहे हैं तो ठीक है आप रहिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई हॉस्टल खाली करना है, ये तो होगा नहीं कुछ। नहीं सर, उसी का नोटिस वायरल हो रहा है हाँ, कि जो है अपना, हॉस्टल। लेकिन अगर जो घर जा रहे हैं वो अपना ये करके जाना कि अगर कहा जाए कि भाई रुको ऑनलाइन क्लास होगा और अभी आना मत इधर, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको लगे यार यार ये तो छोड़ के आ गया किताब कॉपी और ये, तो अपना काम का चीज ले जाइएगा साथ में जो घर जा रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, घर ऐसा नहीं हो रहा सर, हो ये रहा है कि सबको ही घर जाने को बोला जा रहा है 24 से, ऐसा सबको बोला जा रहा है क्या? यस सर। तो नहीं सर, सबको ऐसा है बोला कि जा रहा है तो 24 से अपना सबको अपना जो है चाहिए काम का था। सामान सब ले जाना, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपको फिर रुकने के लिए भी कहा जाए वहां पे, ठीक है। यस सर। यस आई थिंक बाय टुमारो यू विल बी गेटिंग सम कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, लेकिन इतना पक्का है कि अगर घर जा रहे हो तो अपना काम का सामान, बेड वेड रहने देना, बेडिंग वेडिंग वो मत ले जाना, लेकिन अपना कॉपी किताब लेके जाना, ठीक है। दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि कहीं आप निकलते हो तो कम से कम अपना मोबाइल पर्स जैसे लेके निकलते हो ना, कि कहीं भी चले गए यार पैसा रहा, कार्ड वार्ड रहा, मोबाइल रहा तो काम चल जाएगा। और ठंडी अगर आजकल है तो भाई गर्म कपड़े भी पास में रहे, नहीं भी रहा पैसा रहा तो खरीद भी लोगे। तो इतना काम का चीज लेके जाना कि पढ़ाई पढ़ाई अगर वहीं से करना पड़े तो पढ़ लो, बात समझ गए, इसमें यस कोई सर। डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक नो यू सो मच सर। सर, थैंक यू। ओके, सो अभी मैं असाइनमेंट वगैरह दे दूंगा, एक दो दिन और जरा सा थोड़ा सा और दिक्कत है।